Hello students, welcome to EduAdda. Myself Ajay Jaiswal and I am back with the next part of the series which is Smart Tips for Fast Calculations. Thank you for your love and support on the first part which was on squares. Today we will learn about square roots and cube roots and how to calculate them fast using some techniques and tips. So let's begin. So as you already know, the prerequisite for this class is same as the previous class. That is, you have to remember the squares from 1 to 30. I hope you have already done that. This is a screenshot. You can take the screenshot of the image on the screen for ready revision. So moving on, in this class, you will also need to learn the cube roots of numbers, preferably from 1 to 15. Even if you don't remember up to 1 from 1 to 15, you should remember at least 1 to 10. This is on the screen you can see the cubes of numbers from 1 to 10. You should learn them by heart and should be on your fingertips. I would prefer that if you can learn from 1 to 15, it will be very good because mostly questions come from these many cubes only. So you can by heart them, it's very well and good. Like 8 cube is 512, 9 cube is 729, 7th cube is 343, 6 cube is 216, 5 cube is 125, 4 cube is 64, 3 cube is 27, 8 2 cube is 8. 1 और 10 का तो सबको पता होता है. So moving on. So these were the two prerequisites which you need to remember. One is the square roots and the squares, and the other is cubes. So today we will learn how to calculate the square roots of any number. Firstly, let's see the traditional method of calculating square roots. So let's take a number like 1, 2, 5. So 1, 2, 5, 4, 4 ka we have to calculate the square root. So the traditional method says that so division method की तरह रखो and then divide it in pairs of 2, right? So अब 1 को cancel out करने के लिए 1 आएगा, 1, this is the divisor, 1 into 1 is 1, 1 gets cancelled, 1 plus 1 is 2, then the next pair comes down to 5, then the multiplication of 21 into 1 is 21, divisor 1, summation 22, इसको इसमें माइनस करो 4, next pair gets down 44. के बाद next number which can multiply this 222, 444, डिवाइजर में 2 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा और ये कैंसिल आउट. So the square root becomes 112. ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा इस मेथड को. अगर समझ में आया तो बहुत अच्छे, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करने वाले हैं. दिस इज द लॉन्ग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स व्हिच वोंट बी बेनिफिशियल फॉर यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट दिस इन अ स्मार्ट वे. तो क्या था हमारा नंबर 12544. तो इसको हम लोग इन 5 सेकेंड, इनिशियली तो 10 सेकेंड आपको लगेगा लेकिन प्रैक्टिस आप 5 सेकेंड के अंदर ही इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या पहले समझना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है. ये जो एग्जांपल हमने लिया है 12544 का, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर मीनिंग किसी होल नंबर, एक होल नंबर को अगर स्क्वायर किया जाए तो जो स्क्वायर मिलता है हमें वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 4 इज 2 का स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली अगर कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट अगर किया जाए तो एक होल नंबर मिलता है. जैसे अगर एग्जाम्पल ले 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, क्योंकि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट है 5. 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये जो अभी मेथड बताने वाले हैं इट इज एप्लीकेबल फॉर परफेक्ट स्क्वायर्स ओनली.
I will explain you a method which can be helpful in deriving the values of imperfect squares. So firstly we will see the perfect squares and then the imperfect squares. So mostly questions हमारे perfect squares के ही होंगे एग्जाम्स में. तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज की जरूरत है? 1 से 9 तक का या फॉर से 0 से 9 तक के स्क्वायर्स तो सबको ही पता होते हैं. लाइक 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81. राइट. तो इसमें हमें देखना है कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं वो क्या होता है. तो 0 के केस में ऑब्वियसली 0 ही होगा, 1 के केस में लास्ट डिजिट 1 ही है, 4 के में 4, 9 के में 9 क्योंकि सिंगल डिजिट्स हैं ये सब. आगे बढ़ते हैं तो 16 का लास्ट डिजिट क्या है? 6. 25 का क्या है? 5. 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4 और 81 का 1. तो अगर किसी भी नंबर का लेट्स से लास्ट डिजिट 6 है तो का जब स्क्वायर रूट करेंगे क्या चांसेस हैं कि उसके लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं? तो अगर 6 देखा जाए तो अगर 6 किसी का लास्ट डिजिट है, किसी एक नंबर का लास्ट डिजिट 6 है तो या तो उसका लास्ट डिजिट 4 होगा या उसका लास्ट डिजिट 6 होगा. राइट. स्क्वायर्स में अगर आप देखेंगे इसके पैटर्न को तो हर नंबर 2 बार रिपीट होता है. 6 2 बार हो रहा है, 9 बार हो रहा है, 4 2 बार हो रहा है, 1 2 बार हो रहा है, 5 और 0 तो एक बार आते हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका लास्ट डिजिट लेट्स से 4 है तो वो जो जिसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसमें लास्ट डिजिट या तो 8 होगा या फिर 2 होगा. इतना बात आपको बस समझना है अभी के लिए. ठीक है. इसी को मैंने नेक्स्ट टेबल में समराइज किया हुआ है. ये पिछले ही जो टेबल था उसी का एक समराइज फॉर्म है. अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 1 या फिर 9 क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 का 1, इसलिए लास्ट डिजिट 1. इसी तरह अगर लास्ट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 2 होगा या 8 होगा. 2 का स्क्वायर 4, 64 का सॉरी 8 का स्क्वायर 64 जिसका लास्ट डिजिट है 4 और 5 का तो 5 ही होता है, ये आपको पता है. इनफैक्ट अगर 25 होगा लास्ट डिजिट्स तो भी इसका स्क्वायर रूट का 5 ही होगा. 6 अगर लास्ट डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 4 या 6. 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 होता है 36. अगर 9 है लास्ट डिजिट तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है तो लास्ट डिजिट 3 होंगे या 7 होंगे और 0 के तो 2 ही होंगे. ठीक है. ये भी एक टेबल है जो आपको याद रखना है या ये आप मेंटली भी निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल. ये तो स्क्वायर आपको पता ही है, इसके बस लास्ट डिजिट आपको या नोट डाउन करने हैं. ये टेबल भी उसी टेबल से डिराइव हुआ है. तो बेसिकली अब मेथड है क्या जो आपको यूज करना है. इतना नॉलेज अगर आपको याद हो गया तो फिर तो स्क्वायर रूट निकालना चुटकियों का खेल. जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं 1 2 5 4 4. ठीक है. अब इसका लास्ट डिजिट देखना है हमें. लास्ट डिजिट है 4 तो 4 कब कब आता है, किसके स्क्वायर रूट्स में आता है? स्क्वायर्स में आता है. आई मीन या तो इसका लास्ट डिजिट होगा 2 या फिर इसका लास्ट डिजिट होगा 8. राइट. ठीक है. अब लास्ट डिजिट की बात हो गई. अब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. स्क्वायर मतलब 2 का होता है. 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 यानी 2 टर्म्स होते हैं. इसमें लास्ट के 2 जो डिजिट्स हैं उसको छोड़ना है और फिर अब इस पार्ट ऑफ द नंबर को देखना है 125 को. अब हमें देखना क्या है कि 125 से जस्ट एक कम कौन सा स्क्वायर आता है. 125 के नियरेस्ट में भी लोअर साइड में कौन सा स्क्वायर आता है. तो एज पर माई नॉलेज 121 इज द सबसे कम वाला स्क्वायर बिलो 125 एंड 121 का स्क्वायर क्या रूट क्या होता है? 11. तो 12544 का स्क्वायर रूट क्या होगा? या तो 118 होगा या 112 होगा. ठीक है. अब इतना क्लियर है. इसके बाद इनमें से एक्चुअली क्या होगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग इसका मिड वाला टर्म देख लेंगे जो कि 115 का स्क्वायर क्या होता है ये हमें निकालना होगा. और ये पिछले क्लास में हमने सीखा था कैसे तुरंत निकालना है. 5 से एंडिंग नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकलता है.
तो 5 से एंडिंग है तो ये 25 है, और फिर 11 इंटू 12 दैट इज 132। ठीक है, 115 का स्क्वायर कैसे निकला ये प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था। तो जो नंबर आया 13225, ये नंबर से कम है, राइट। वन, ये कितना है, 12,000 है, ये 13,000 समथिंग। 12,000 इज लेस देन 13,000। जो लेसर नंबर है वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 209 का। ये शायद नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन था। तो लास्ट डिजिट है इसका 9। तो हमारे क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो लास्ट डिजिट होगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, या होगा ये 7। ठीक है, 47 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अब लास्ट के दो डिजिट्स को छोड़ो, अब पे फोकस करो 22 पे। तो 22 से कम कौन सा स्क्वायर होता है राइट। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। या तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2209 का 43 या 47। इसका नंबर चेक करो, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 इंटू 025। क्या 025 से ज्यादा है ये जो नंबर है, तो ज्यादा वाला हमारा 47 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2209 का स्क्वायर रूट इज 47। एक और एग्जांपल देखते हैं 436। ये एक नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगेन दो पॉसिबिलिटीज बनाते हैं हम लोग। पहला, लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, इसका लास्ट डिजिट है 6, तो 6 किस में आता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। या फिर आता है लास्ट डिजिट 6, 6 में 6 का स्क्वायर होता है 36। अब दो डिजिट छोड़ के फिर फोकस करते हैं, 243 से कम कौन सा होता है हमारा स्क्वायर। तो 25 हमारा नियरेस्ट होता है। ये सब आपको कैसे दोनों याद रखना है, आपको सारे स्क्वायर्स क्यूब्स याद होने चाहिए बाय हार्ट एंड ऑन योर फिंगर टिप्स टू योर गुड मार्क्स इन क्वांट। तो 225 हमारा नियरेस्ट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15, राइट। अब मिडिल वाला पार्ट देखते हैं, 155 का स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में होगा 25, 15 इंटू 16 कितना होगा 225, 24025। ठीक है, 24025, इससे ये नंबर ज्यादा है तो 156। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। बस लास्ट डिजिट देखना है, फिर दो डिजिट्स छोड़ के हमें बाकी रिमेनिंग पोर्शन को देखना है, और वो इसका नियरेस्ट जो स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट निकाल के वो न दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, और फिर मिड वाले वैल्यू से हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे। इतना शायद देखने में टाइम टेकिंग लगे, बट इफ यू प्रैक्टिस यू कैन मास्टर दिस वेरी इजीली। तो मूविंग ऑन, अब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं एनी नंबर का। अभी तक हमने जो कंसेप्ट देखा वो दैट वाज एप्लीकेबल फॉर ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, बट इफ यू नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, दैट आल्सो वी कैन डू वेरी इजीली। तो करना क्या है, जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, 18 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो 18 से सबसे कम वाला स्क्वायर कौन सा होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये तो पता है कि 4 पॉइंट समथिंग विल बी दी स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। 4 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो ही 16 से बड़ा आने वाला है, राइट। वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 4 का स्क्वायर क्या था 16, राइट। तो 16 ये कितना ज्यादा है, ये जो नंबर है जिसका हमें निकालना है वो 2। ठीक है, 18 माइनस 16। अब कुछ नहीं करना है, इस 4 का ही नीचे में डबल कर देना है 8। ठीक है, ये टेक्निक समझ में आया। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, फिर 4 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/4 बन जाएगा। 1/4 क्या होता है 4.5। एज सिंपल एज दैट। तो अगर ये अंडर रूट 18 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो वो आता है 4.29, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4. एक और एग्जांपल देखते हैं, काफी पावरफुल मेथड है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, और ये आपको अप्रोक्सीमेट एकदम सही वैल्यू देती है। ठीक है, तो 127 इज दी
न्यू स्क्वायर रूट फॉर विच वी हैव टू फाइंड द आंसर। तो से कम 127 से कम कौन सा स्क्वायर है? तो 121 सबसे नियरेस्ट स्क्वायर है कम, और 121 का स्क्वायर रूट है 11 है। अब 121 और 127 का डिफरेंस क्या है? 6। और अब 11 को ही डबल करना है नीचे 20। क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे 11 11 और इसको अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 11.11 है, तो ये 7 आएगा। 7 ये एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, तुम कंफ्यूजन, तो आप डायरेक्टली 11 और इसका जो न्यू डेसिमल वैल्यू आएगा वो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। 127 का स्क्वायर रूट इज 11.7। आई होप आई एम क्लियर। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिए। तो मूविंग ऑन, ओके, so this is a question for which we will solve for take this x। तो ये है 11449 का स्क्वायर रूट, 6241 का स्क्वायर रूट, 54 का स्क्वायर और 74 का स्क्वायर। इसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में जितना अभी तक हमने सीखा है उसका यूज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो 9 लास्ट डिजिट है, तो इसका क्या होगा? 3 या 7 होगा। के बाद लास्ट डिजिट्स को छोड़ो। 114 से कम कौन सा होता है? 100 का स्क्वायर, 100 आई मीन 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 10। 105 का क्या होता है स्क्वायर? 5 और 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट? 07, क्योंकि नंबर आया, राइट। तो 6241 आया, 6241 लास्ट डिजिट 1 या फिर क्या हो सकता है लास्ट डिजिट 9, राइट। अब इसके दो डिजिट्स को छोड़ो, तो कम वाला कौन सा स्क्वायर है? ये है 49, तो 71 या 79 होगा आपका। बीच वाला टर्म देखो 75 का स्क्वायर 25, 8 इंटू 7 क्या होता है? 7 होता है 5 6। ये टर्म बड़ा है तो बड़ा वाला हो जाएगा। माइनस 54 का स्क्वायर, 54 के लिए 50 हम लोग रेफरेंस लेंगे, ये 4 का 16 हो जाएगा, और 4 ज़्यादा है इससे तो 25 4 जोड़ देंगे 916 हो जाएगा। ओके, ये x है, प्लस सिमिलरली 74 का स्क्वायर क्या होगा? 74 50 से कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा? 75 ऊपर कैरी में गया, और 24 को किसमें जोड़ेंगे हम? 25 में, तो 25 प्लस 24 क्या होता है? 49। 5 अगर इसमें कैरी कर देंगे तो ये 5476, राइट। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। मेन प्रॉब्लम क्या है? इसको सॉल्व करने का प्रॉब्लम हम पिछले वीडियो में भी फंस गए थे, जिसमें इतना बड़ा कैलकुलेशन करना था। इसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्विकली मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अभी के लिए आप तो मैनुअली मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए क्या है, राइट। तो कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करना है। ये मैं छोड़ देता हूँ, इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए। तो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, क्यूब रूट्स। हाउ टू सॉल्व द क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स का भी कंसेप्ट सिमिलर रहेगा स्क्वायर रूट्स जैसा ही। जिस तरह से अगर एक नंबर है 1 2 3 4 5, तो स्क्वायर रूट्स में क्या देखते थे हम लोग? लास्ट डिजिट, राइट, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे? लास्ट दो डिजिट छोड़ के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर को देखते, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? सेम चीज करना है, लास्ट डिजिट देखना है, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और इसमें सिर्फ 1 2 3 तीन नंबर्स को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर को देखना है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट है, सेट स्क्वायर रूट जैसा ही, बट इनफैक्ट क्यूब रूट ज्यादा सिंपलर होता है स्क्वायर रूट से, वो अभी मैं बताता हूँ क्यों। अब ये तो आपको पता ही है कि आपको 1 से 10 तक, 1 से आई मीन 15 तक तो याद करने ही है, लेकिन क्यूब रूट के लिए आपको सिर्फ 1 से 10 का अगर नॉलेज भी पता है तो भी सफिशियंट है। तो इसमें भी हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं कि 1 का क्यूब होता है 1, 8, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 7, 4 का क्यूब 60, लास्ट डिजिट 4,
5 का 125 लास्ट डिजिट 5, 6 का क्यूब 16 लास्ट डिजिट 6, 7 का क्यूब 343 लास्ट डिजिट 3, 8 का क्यूब 512 लास्ट डिजिट 9 का क्यूब 729 लास्ट डिजिट 9। ये समराइज फॉर्म इस टेबल में आप देख सकते हैं। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। में देखने वाली बात यह है कि ये जो सारे नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में है वही सारे नंबर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर राइट हैंड साइड में भी है। एज कम्पेयर टू स्क्वायर रूट्स हमने देखा था कि हर एक नंबर 2 बार रिपीट होता था। जैसे अगर 6 है तो वो 4 में भी आता था और 6 में भी आता था। बट इन द केस ऑफ क्यूब्स ये सारे नंबर यूनिकली पोजिशनड है, यानी सारे एक ही बार आ रहे हैं। एक पूरे सीरीज में एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार, 4 5 7 8 राइट। तो इसमें जब हम लोग लास्ट डिजिट क्लियर कर लेंगे, लास्ट डिजिट हमें पता चल जाएगा, तो फिर हमें 2 पॉसिबिलिटीज नहीं जनरेट होंगी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी से काम चल जाएगा हमारा। ये आपको याद रखना है, ये स्क्वायर रूट्स की तरह इसमें भी आप क्यूब्स निकाल के उसका लास्ट डिजिट डिटरमाइन कर सकते हैं। ये 1 to 10 तो आपको बाय हार्ट एनी हाउ याद रखना ही। अब देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन का हमें क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना है हमें 1756 का, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट है 6, 6 कौन से क्यूब रूट में आता है? तो अगर 6 का क्यूब हमें पता है वो होता है 216, तो लास्ट डिजिट है 6। तो इसमें भी क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या होगा? 6, ठीक है। अब 3 डिजिट्स को छोड़ो, मेनिंग पार्ट क्या है? 17, 17 को देखो, 17 से कम कौन सा क्यूब होता है? एज पर माई नॉलेज 8 होता है, 8। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 26, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसमें आ जाता है, 2 पॉसिबिलिटीज एज आई सेड नहीं आती। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर 2197 का क्यूब रूट निकालना है हमें, तो 7 किसके लास्ट डिजिट्स होते हैं? ये होता है 13 का, राइट, सॉरी 3, हाँ ओके, 27 का क्यूब रूट होता है 3, राइट। तो 7 अगर लास्ट डिजिट है तो 3 ही होगा इसका लास्ट डिजिट, ओके। अब 3 डिजिट्स छोड़ दो और 2 को देखो, कम कौन सा क्यूब होता है? 1 होता है। 1 का क्यूब रूट 197, 13 का क्यूब रूट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 583 रूट निकाल, तो लास्ट डिजिट है 2 में आता है, 18 में आता है, 18 का क्यूब होता है 512, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हो गया 8, 3 डिजिट्स को छोड़ो, 5 को देखो, 5 से कम कौन सा होता है? 1, 5 से कम क्यूब होता है 1, 1 का क्यूब, आंसर है 18, 583 का क्यूब, right? I hope you like this method. It's as simple and very similar to the square root concept. और क्वेश्चन देखते हैं। 197 अभी जस्ट हमने निकाला, क्यूब रूट का क्यूब रूट का 13, ठीक है। का अगर आपको याद होना चाहिए, निकालने की बात भी नहीं, रहेगा 5 डिवाइडेड बाई 97, 518 का 8। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ भी हमें दिमाग लगाने की जरूरत। 13 into 5 to be answer, right? So I hope you like this video. The end of the video. Thank you for watching it till the end. And if you like this series, to drop a comment and we will bring the next part of this series. Thank you once again and stay tuned for the next part.